Good morning, students. In continuation of the previous lecture of selection process, in this lecture we will discuss the difference between recruitment and selection process. Also, we are going to discuss various factors which affect the selection process. Okay. So, let us differentiate between recruitment and selection. बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को एक ही प्रोसेस मानते हैं, एक ही एक्टिविटी मानते हैं, बट दे बोथ आर डिफरेंट. बट एज दे बोथ आर कॉन्जिक्यूटिव और लाइक immediate processes of each other, so they are spoken in togetherness. Okay. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन दोनों एक साथ ही कहे जाते हैं क्योंकि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन कॉन्जिक्यूटिवली ही होंगे, लेकिन तब भी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस में डिफरेंस होता है. फर्स्ट डिफरेंस तो यही है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड अप होता है वहाँ से हमारा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है. ओके. सेकेंड डिफरेंस इज दैट recruitment is a positive process and selection is a negative process. Why it is so, I have already told you in the previous lecture and we will discuss the same point in the later slides. So here there are four bases of differentiation between recruitment and selection. See, on the basis of the objective, on the basis of the process, on the basis of techniques, and on the basis of the outcomes. So first of all, on the basis of the objective. See, the main objective of recruitment process is to attract maximum number of candidates and to invite and acquire maximum number of application of the job candidates. Okay. So that is the main objective of recruitment. While in selection, to choose the best profiles out of the available application is the main objective. जितनी भी applications हमारे पास में आए, जितने भी बायोडेटाज हमारे पास में आए हैं, उसमें से बेस्ट प्रोफाइल्स को शॉर्टलिस्ट करना, उनको चूज करना, बेस्ट कैंडिडेट्स को, ये सिलेक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है. ओके. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस, सो रिक्रूटमेंट अडॉप्ट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एप्लीकेशन पूल. लास्ट टाइम हमने जब सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस किया था, देन वी डिस्कस दैट द फर्स्ट step of selection process is application pool. Okay, which is the last step of the recruitment process. So the main objective here in recruitment was to create the application pool as large as possible, means the maximum number of application has to be there. Okay, so since it accepts all the applications, what the recruitment process हर application को accept कर रहा है, इसीलिए ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है. ठीक है. ये किसी को भी मना नहीं कर रहा. जो पर्सन चाहता है वो अपना रिज्यूमे डाल सकता है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए. अब वो सेलेक्ट होता है या नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन. ओके. सो सिलेक्शन अडॉप्ट्स द प्रोसेस थ्रू विच मोर एंड मोर कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड. ठीक है. बिकॉज यू नो दैट द वैकेंसीज आर वेरी फ्यू, देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द एप्लीकेंट्स आर सो मैनी. Because of that reason, more candidates, more application has to be rejected. Okay, to select just a few one or to select the best applications or the best candidates, more and more candidates have to be rejected. So the rejection of so many people are involved in the selection of just a few people. Okay, and a fewer candidates are selected or sometimes even not a single candidate is selected. So therefore selection is a negative process. ठीक है. और this is also known as a rejection process. But we know that the objective of selection is to choose the best. So because of that only we call it just the selection process only. But still it is a negative process because it involves the rejection of so many candidates at each and every round of selection. Then the third basis is the technical difference or on the basis of the technicality.
recruitment techniques are not very intensive and not require high skills. okay, recruitment बहुत ज़्यादा intensive नहीं है, सिर्फ एक आपको क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बेस पे कोऑर्डिनेट करना है, एप्लीकेशंस को इनवाइट करना है, उनको फाइनली थोड़ा सा स्क्रीन आउट करना है, एप्लीकेशन पूल क्रिएट करना है थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जो मैंने आपको पढ़ाए थे इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. ओके, बट selection process is a very tedious and deliberate process, therefore it require highly specialized techniques. okay, like it will involve the selection tests, the interviews, and then further background checking, medical tests, and other things. So therefore it is a highly specialized techniques, and specific skills are required and expertise are required, like selection test and conducting interview etc. Then the difference in outcomes. okay, जो इसके end results आते हैं दोनों के, रिक्रूटमेंट के और सिलेक्शन के, वो भी दोनों अलग है. देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट में जो end result है वो क्या है, application pool, that we are having a pool or a stock of so many applications. okay, but in selection process you know that the output of recruitment process is the input for the selection process. As I told you that where the recruitment process ends, the selection process starts. So the output or outcome of the recruitment process is the input for the selection process. जो भी application pool create हुए, which is the first step of the selection process. okay, जो भी application pools create हुए हैं वो input है selection process के. अब उसमें से screening करनी है, tests करने हैं, next rounds के लिए फिर interview कराने हैं. और आपको दिखाया था मैंने last lecture में कि हर step पर rejection involve है. okay, the outcome of selection process is in the form of finalizing candidate who will be offered the job. यहाँ पर आउटकम था एप्लीकेशन पूल, किसमें, रिक्रूटमेंट में. ओके, रिक्रूटमेंट में आउटकम था एप्लीकेशन पूल, बट सिलेक्शन में आउटकम है फाइनलाइजिंग दोज कैंडिडेट्स और चूजिंग दोज कैंडिडेट्स हु विल बी ऑफर्ड द जॉब. देन ऑन let us discuss about the purpose and importance of selection for an organization. We know that if the selection process is the right process, then it ensures right people at right place at the right time in the organization. okay, so here we procure the relevant qualified and skilled employees. जो हमें relevant profiles चाहिए in terms of their qualification and skills, वो हमको मिल रही हैं through the selection process. And it also reduce the employee turnovers. For example, I can tell you that human resource planning का भी यही objective है, to ensure the right person at the right place at right time. okay, so अगर right person at right place नहीं होगा, it means that selection process में कुछ problem थी, that either we have selected the wrong person at the right place or the right person at the wrong place. तो इनमें से अगर कुछ भी है mismatch, तो क्या होगा, एम्प्लॉय क्या होगा, डिससेटिस्फाई हो जाएगा, अपनी जॉब को ठीक से नहीं कर पाएगा, उसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा उसी जॉब को करने के लिए. तो इसकी वजह से एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा, बहुत सारे लोग जॉब को छोड़ेंगे, रिजाइन करेंगे. ओके, टर्नओवर रेट इंक्रीज होगा, लेबर टर्नओवर रेट, एंड एब्सेंटिज्म भी इंक्रीज होगा. they won't like to work in the organization, they will be absent either mentally or physically at the job place. okay, saving in टाइम सेविंग भी होता है, अगर सिलेक्शन प्रोसेस प्रॉपर है तो ये टाइम सेविंग भी होता है. ठीक है, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. अगर पहले से क्वालिफाइड और स्किल्ड पीपल हैं तो हमें उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे कि जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट T&D की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी. टू असेस बिहेवियर, उनके बिहेवियर को असेस करने में भी सिलेक्शन का रोल होता है. ओके, टू जो हम बेसिकली 3 चीज़ें मेजर करते हैं, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, KSA. K फॉर नॉलेज, S फॉर स्किल्स एंड A फॉर एटीट्यूड. ये जो KSA का सेट है, इसको हम किसी भी जॉब कैंडिडेट का कॉम्पिटेंस डोमेन कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो एटीट्यूड है, इट मैटर्स अ लॉट बिकॉज इट इज द प्री डिस्पोजिशन ऑफ द कैंडिडेट्स बिहेवियर, हाउ ही इज गोइंग टू बिहेव इन द future at its job, how is going to perform that, and that assess the
likelihood of success of any employee's job performance. Okay, now here there are certain selection errors. ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है बिटवीन द सिलेक्शन डिसीजंस आउटकम एंड द डिजर्विंगनेस ऑफ द कैंडिडेट, कि सिलेक्शन डिसीजन हमारा सही है या नहीं है. ओके, तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में आ रहा है कि एम्प्लॉय जो है वो डिजर्विंग है, यानी कि सक्सेसफुल है इंटरव्यू में, उस जहाँ जो उसको क्वालिफिकेशन के लिए जितने मार्क्स चाहिए थे इन टेस्ट, इंटरव्यूज एंड ऑल दीज राउंड्स, वो उसने सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लिया वहाँ पे. एंड देन ही इज एक्सेप्टेड एंड ही इज ऑफर्ड विद द जॉब, देन इट विल बी अ करेक्ट डिसीजन. लुक एट दिस cell of the matrix or quadrant of the matrix. Here the job candidate was unsuccessful or disqualified. Okay, either in the selection test or in the interview वो क्या हो जा रहा है, डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है, नॉन डिजर्विंग है, तो अनसक्सेसफुल है. ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया. ये भी एक करेक्ट डिसीजन है. जो सक्सेसफुल है, डिजर्विंग है, उसको एक्सेप्ट किया, जो अनसक्सेसफुल है उसको रिजेक्ट कर दिया. दीज बोथ आर द करेक्ट डिसीजन इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन. ठीक है, बट लुक एट दिस सिनेरियो वेयर द एम्प्लॉय वॉज सक्सेसफुल बट ही वॉज रिजेक्टेड. ठीक है, ये एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ जो भी मतलब क्या जॉब कैंडिडेट था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिसहार्टनिंग और बहुत ही डिमोरलाइजिंग चीज़ हो गई कि वो सक्सेसफुल था, वो डिजर्विंग था, बट स्टिल ही वॉज रिजेक्टेड. कई बार बायसनेस हो जाती है, बहुत सारे सिलेक्शन एरर्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉय सक्सेसफुल तो होता है, डिजर्विंग तो होता है इंटरव्यू में, सिलेक्शन टेस्ट में, बट स्टिल ही गेट्स रिजेक्टेड. ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में ऐसी बायसनेस होती है जो कि अनएथिकल है, नहीं होनी चाहिए, बट समटाइम्स इट हैपन्स इन मैनी जॉब्स. प्राइवेट जॉब्स में भी होता है. कई बार जो दूसरा पर्सन है, जो दूसरा जॉब कैंडिडेट है, उसका कोई रेफरेंस होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, उसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे पर्सन को सिलेक्ट कर लिया जाता है और वो जो ज़्यादा डिजर्विंग होता है उसको नहीं किया जाता. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग एंड दिस डिमोरलाइजेस, दिस डिक्रीजेज द मोरल ऑफ द जॉब कैंडिडेट हु हैज़ successfully cleared all the selection rounds. Okay, now look at this condition here. The job candidate was unsuccessful or disqualified but still he was accepted. So this is an accept kind of error. Person non deserving है but still उसको accept किया जा रहा है. ये वाला जो selection error है, accept error, ये rejection error से भी ज़्यादा dangerous है. Why? Because if any non-deserving, unskilled, unknowledgeable person is selected, then it will involve a lot of cost to the company. Company has to incur a lot of cost and losses due to this person because he is going to ruin the organization. Okay, he is going to ruin the work environment. He is going the training and development cost of such an employee will be so high, and he may also not be he may not be also working for a long run in such organization. तो ये कुछ सिलेक्शन आउटकम्स थे और जो एम्प्लॉय है उसका डिजर्वेंस था, इसके बेस पर एक सिलेक्शन मैट्रिक्स बनी थी जहाँ पर दो तरीके की सिलेक्शन एरर्स हमने देखी. एक थी एक्सेप्ट एरर, दूसरी थी रिजेक्ट एरर. ये दोनों ही बहुत गलत चीज़ हैं सिलेक्शन में, जो कि नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये इस तरीके की सिलेक्शन एरर्स होती क्यों है? व्हाट आर द रीजंस और द फैक्टर्स विच अफेक्ट द or influence the selection process? So let us discuss about them, the barriers to effective selection. First is the perception. See, perception is what? Perception is the interpretation of individuals towards others. Okay, so हर person का जो interpretation है जॉब कैंडिडेट के लिए वो डिफरेंट होगा. जो भी इंटरव्यूअर है उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा. आवर इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सनैलिटी इज प्रोबेबली द मोस्ट फंडामेंटल बैरियर्स टू सेलेक्ट द राइट कैंडिडेट. समटाइम्स इट मे हैपन दैट समवन as an interviewer may not be able to understand and interpret the personality of the job candidate. He may be a successful person but still the person is rejected. So that is one kind of selection error due to perception.
Incorrect perception of candidate who has come for interview may bias the interviewer and may result into inappropriate selection. Then second is ineffective recruitment initiative. Okay, रिक्रूटमेंट ही प्रॉपर नहीं था. जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमने एप्लीकेशन पूल क्रिएट किया है वहाँ पर हम जो मोस्ट सूटेबल एप्लीकेशंस थी उनको ही अट्रैक्ट नहीं कर पाए, और जो हमारे पास एप्लीकेशंस आए हैं, जितने हमारे पास रिज्यूमे या बायोडेटाज आए हैं, वो उतने ज़्यादा रेलिवेंट, इतनी हाई प्रोफाइल के नहीं है, उस रेलिवेंस के नहीं है जितने कि वो होने चाहिए थे. लेकिन अब क्योंकि हमारे पास वही पूल अवेलेबल है, उसी में से हमें फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करना है. तो मे बी बिकॉज ऑफ इनइफेक्टिव रिक्रूटमेंट द सिलेक्शन process is not effective. Okay, sometimes the selection process gets affected due to the ineffective recruitment initiative taken by the organization. If the recruitment organization fails to attract the qualified candidates in recruitment process, then it is obviously the right candidate will not be selected in the selection process. Then the fairness. So fairness means that we are not going to discriminate any candidate against or on the basis of his or her religion, race, gender. Okay, that everything should be biased. जो भी person की qualifications हैं, नॉलेज एंड स्किल्स हैं, उसका एटीट्यूड है, उसके बेस पर ही हम सिलेक्शन कर रहे हैं, उसके स्किल्स, एबिलिटीज़ और एक्सपीरियंस के बेस पर ही, ना कि उसके रीजन, रेस, जेंडर, इनके बेसिस पर. सो दिस थिंग इज नोन एज फेयरनेस, बट समटाइम्स पीपल गेट बायस्ड. Because of that, selection errors occur and selection process does not become effective. Then the validity. See what is validity? Validity is something that जो भी हम चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं या जो हमारे टेस्ट हैं, इंटरव्यूज हैं, जिस चीज़ को हम एग्जामिन कर रहे हैं, हम उस चीज़ को ठीक से उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर पाएँ, दैट इज़ नोन एज वैलिडिटी. वैलिडिटी इज़ अ टेस्ट दैट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एन इनकम्बेंट. इनकम्बेंट मतलब वही जॉब कैंडिडेट. सो वैलिडिटी इज अ test that can differentiate between the employees who can perform well and those who will not perform. Means जो हमारी जो line of difference है between the successful candidates और unsuccessful candidates, उसको ठीक से create कर पाए, that is the validity. So अगर validity proper है तो हमारा selection process ज़्यादा effective होगा, अगर validated नहीं है test तो नहीं होगा. Okay. Then reliability. A reliable method is one which will produce the consistent results every time it is conducted. जितनी बार हम टेस्ट करें उतनी बार वही रिजल्ट आए, तो दिस इज नोन एज रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपको एग्जाम्पल लिया था, सपोज हम थर्मामीटर से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो जितनी बार हम आपको पता है कि विद इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से शूट अप नहीं होगा या एकदम से जो है वो फॉल डाउन नहीं होने वाला है. ठीक है, जब हमने उसको मेजर किया तो हमने जितनी बार मेजर किया सेम रीडिंग आ रही है, विद इन हाफ एन आवर वही रीडिंग आ रही है. इट मीन्स या थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो दैट इज द रिलायबिलिटी ऑफ दैट थर्मामीटर और द टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस. ओके, ऐसे हम वाटर का TDS मेजर करते हैं, तो जो TDS मशीन है वो एक बार तो सेम वाटर की रीडिंग जो है वो 300 दे रही है, और सेकेंड टाइम हमने टेस्ट किया, दोबारा से हमने डिप किया सेम वाटर में, तो वो 1200 mg पर लीटर देने लगी. तो ये तो क्या हो गया, रिलायबिलिटी नहीं हुई. वो पर्टिकुलर जो TDS डिवाइस है वो फिर रिलायबल नहीं है. जितनी बार हम टेस्ट करें उतनी बार सेम रिजल्ट दे, दैट इज रिलायबिलिटी. दैट रिलायबिलिटी हैज टू बी चेक्ड विद इन द जॉब कैंडिडेट्स ऑल्सो, कि जितनी बार हम उनको एग्जामिन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, दे आर सेलेक्टेड. सो दैट इज नोन एज द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट. बट इसका मतलब ये नहीं है कहीं भी कि हम बार बार फिर उस कैंडिडेट का टेस्ट ही लेते रहेंगे या हम उसका इंटरव्यू लेते रहेंगे. एक ही बार में हम उस टेस्ट को और इंटरव्यू को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि वो वैलिडेटेड भी हो और वो रिलायबल भी हो. ओके, like a validated test, a reliable test may fail to predict job performance with precision. because ये ऐसा इसलिए होता है कि reliability और validity से भी हम ये नहीं कह सकते कि वो पर्सन जो हमें अच्छा ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि बेसिकली जो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी है या कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन टेस्ट है वो पोटेंशियल चेक कर रहा है उस
कैंडिडेट का, लेकिन जब वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जा रहे हैं और जॉब में प्लेस हो जा रहे हैं, उसके बाद उसके बहुत सारे फैक्टर्स जॉब के अंदर के होते हैं जो, या उसके पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसकी जॉब परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं. ओके, देन कम्स प्रेशर. Pressure brought on selectors by politicians, bureaucrats, relatives, friends. हाँ, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स में या जो हाई प्रोफाइल जॉब्स होती है उनमें ऐसा होता है कि हाई लेवल ऑफ जॉब्स में या गवर्नमेंट जॉब्स में कुछ पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, जो हाई अथॉरिटीज़ होती हैं, कोई पर्सन किसी का रिलेटिव है, फ्रेंड है, कोई कोलीग है, उन लोगों का कुछ पीयर प्रेशर रहता है. उनका प्रेशर रहता है कि जो है please select the particular candidate, he has to be inside the organization and all. So because of that it creates some limitation or barrier to the effective selection process. Okay, then comes the quota system. Quota system, as we know that reservation system, because of that if there is a certain % of reservation of a particular category, that may be a OBC, SC, ST, women, or like EWS is a new category now. So अगर इनके बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है तो वहाँ कुछ परसेंटेज रिलैक्सेशन मिल रही है उस कैंडिडेट को. वहाँ स्किल बेस्ड नहीं है, वहाँ पर फिर कोटा बेस्ड सिलेक्शन हो जा रहा है, विच ऑल्सो डिसअपॉइंट्स द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स. ओके, ड्यू टू दिस inappropriate candidates is selected in place of the most suitable candidate. Okay, then comes the nepotism or favorism. So nepotism, as we know that it is bhai bhatijawad, that the most favorite people or someone who is the relative of someone or relative of your close friend is selected, or someone whom you favor is selected. So this is also very common barrier to the effective selection in both public as well as the private sector. Okay, then the cost and time, sometimes due to the lack of cost and time also. Okay, lack of budget, lack of insufficient time, the right person cannot be selected for the post. Then the stereotypes. Stereotypes means like because of some common traits, some predisposed features, we perceive any person in a wrong way. ठीक है, so this is one of the most common barrier to selection. An interviewer may have incorrect perception about a particular set of people. एक पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, जेंडर से बिलोंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मे बी जो इंटरव्यूअर्स हैं या सेलेक्टर्स हैं उनके माइंड में कुछ इनकरेक्ट परसेप्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज द पर्सन वॉज बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप, वहाँ पे बायसनेस आ जाती है इसकी वजह से. ठीक है, तो ये भी एक परसेप्चुअल एरर है जो कि सिलेक्शन में भी हो सकती है, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल में के टाइम पर भी हो सकती है, ये ऑर्गेनाइजेशन में और जगह भी आप देख सकते हैं. ठीक है, ये स्टीरियोटाइपिंग एक परसेप्चुअल एरर है, ये यहाँ पे HR में स्पेशली सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में देखी जाती है. कई बार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में भी इसका कुछ रोल होता है. अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, ओके, तो कंज्यूमर बिहेवियर में भी, कस्टमर्स में भी ये स्टीरियोटाइपिंग एरर देखी जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी होती है. बट यहाँ इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिलेक्शन वी विल फाइंड दैट हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ द स्टीरियोटाइपिंग. ठीक है, जैसे कि वी जनरली कैटेगराइज द कैंडिडेट सच एज, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना कि ऑल प्रोफेसर्स एंड टीचर्स आर एब्सेंट माइंडेड, या आपने एक अपनी एक अवधारणा बना ली है, एक माइंड में एक हाइपोथेसिस बना ली है कि सारे जितने टीचर्स हैं वो एब्सेंट माइंडेड होते हैं. ओके, ऑल सिविल सर्वेंट्स आर बोरिंग, कैंडिडेट्स विथ साइंस बैकग्राउंड आर इंटेलिजेंट. इट मे नॉट बी सो, हो सकता है कि कोई कॉमर्स का या आर्ट्स का पर्सन उससे ज़्यादा इंटेलिजेंस हो, बिकॉज इंटेलिजेंस इज नॉट अ वेल डिफाइंड वर्ड एंड इट इंक्लूड सो मैनी पैरामीटर्स लाइक क्रिएटिविटी, मेमोरी, रिटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड ऑल दीज थिंग्स. ओके, also like backbenchers in the class are poor attention payers. All females are basically sincere and honest. Obese people do not make good salesmen. जो मोटे लोग होते हैं वो अच्छे सेल्समैन नहीं होते. इस तरीके से जो है स्टीरियोटाइप्स हैं ये कुछ. तो ये स्टीरियोटाइप सिलेक्शन के टाइम पर भी हो सकते हैं. हो सकता है एज एन इंटरव्यूअर किसी पर्सन के माइंड में कुछ पर्टिकुलर स्टीरियोटाइपिंग हो, कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल के लिए, उनके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को लेके.
तो मे बी द पर्सन विल रिजेक्ट दोज पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ दोज स्टीरियोटाइप्स. Then comes halo effect. Halo effect is another barrier to the selection process, which can be negative or positive. Okay, मतलब halo effect basically होता क्या है कि due to certain personal characteristics of the job candidate, which are either liked by the selectors or hated by the selector, they make a wrong selection. हो सकता है कि someone who is not deserving but he is having certain personal characteristic may be selected. Sometimes the personality, someone is tall and well groomed and was fair, then the person got selected. But even if he is not having the right set of knowledge, skills and attitude, okay, so that may lead to a wrong selection. In other words, a single characteristic of an individual or a trait of a candidate may cast its influence over all other traits of that individual, resulting in a biased selection rejection of the candidate. So that was all about the selection process, and with this topic of recruitment and selection has been finished. And after that I am going to give you a assessment test based on this recruitment and selection process. Okay, so be prepared for that. Keep studying. Thank you, students.